Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we are gonna begin the chapter number 8 of Oshante Trua. ठीक है, so Oshante 3 का हम chapter number 8 begin करेंगे. Chapter number 7 we completed in our previous video. Okay, so it's turn to focus on chapter number 7. We are gonna cover the text, we are gonna cover the grammar topics. And जो exercise है, you all are gonna solve it yourself. क्योंकि चैप्टर के साथ अगर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाने लग गई सो इट्स गोना बी अ लेंदी वीडियो फॉर यू ऑल. सो मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट रहे वीडियो एंड उसमें इंफॉर्मेटिव भी सब कुछ हो. सो अगर एक्सरसाइज में कोई भी डाउट होता है सो यू मे आस्क इन द कमेंट्स, डोंट हेजिटेट एट ऑल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. सो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कैसे जो हमारा बच्चा था वो बिल्कुल भी अपनी मम्मी की बात नहीं मानता था एंड उसने एक दिन बात मान ली तो उसको चॉकलेट केक मिल गया. वाओ, चलो लेट्स जस्ट लीव दैट पार्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. इट इज़ ऊ आलेवू. ऊ आलेवू मीन्स वेयर आर यू गोइंग. सो बेसिकली ये हमारा वेकेशंस का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है एंड देर आर फ्यू फ्रेंड्स हु आर डिस्कसिंग वेयर यू ऑल आर गोइंग ऑन योर वेकेशंस. अब वेकेशन की बात आते ही यार याद आ जाता है कि यार मामा के घर जाएंगे, मामा के घर जाएंगे. एंड सम ऑफ यू सेज नहीं मनाली घूमने जाएंगे, मनाली घूमने जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे. सो दैट इज़ द सेम वे दीज फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग कहाँ कहाँ वो जाने वाले हैं. सो लेट्स सी देयर प्लान फॉर the vacations. So des amis discutent de leur plan pour les vacances qui arrivent. Means some friends are discussing their plan for the vacations which are going to arrive. So vacations आने वाली हैं and the friends are discussing their plan. So Camille says les vacances arrivent means the vacations are coming. Quels sont vos plans pour les vacances means what are your plans for the vacations? Adeline says moi je vais chez mes grands-parents à la campagne où je fais beaucoup d'activités. Means me I am going to my grandparents in the campagne. Campagne is the countryside. Countryside देखो ऐसी टाइप की जगह होती है जहाँ पर बिल्कुल खुला खुला मैदान होता है. जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके पास फार्म हाउस होता है. दे कीप हॉर्स, दे डू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. ठीक है, सो ऐसी जगह होती है हमारी कंट्री साइड एंड दैट्स अ रियली नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस. ठीक है, where I do a lot of activity. ठीक है, next Daniel says pourquoi vas-tu à la campagne means why are you going to the countryside. Adeline says parce que j'aime la beauté de la nature et je m'amuse à faire des activités comme nourrir les animaux, faire du jardinage et jouer dans les champs avec mes cousins. Means because I like the beauty of nature. La beauté de la nature means the beauty of the nature. Et je m'amuse à faire des activités means I enjoy doing some activities like feeding the animals, do gardening and play in the swamp. Swamp means field. वो वाली field नहीं, medical field नहीं, वो वाला जो उसको farm बोलता है उसको हम field भी बोलते हैं. So I like to play in the farm or you can say field with my cousins. ठीक है, François says tu as de la chance, Adeline means you are lucky, Adeline. Tes grands-parents habitent à la campagne. Your grandparents live in the campagne means countryside. Adeline says connaissez-vous l'Inde? Je vais au Inde avec ma famille. Family means do you know India? I am going to India with my family means countryside तो जा रहा है and कहाँ पर? In India. ठीक है, Daniel he says oui, c'est un pays incroyable. Yes, it is an incredible country. Yes, incredible तो है ही भाई हमारी country. Il y a des monuments et beaucoup de diversité means there are some monuments and a lot of diversity. Ma mère a une amie indienne means my mother has an Indian friend. ठीक है, François says pendant les vacances je vais à Paris avec mes cousins means during the vacations I'm going to Paris with my cousins. Cette idée est vraiment bonne means this is a really good idea. Adeline says et toi Daniel, où vas-tu means and you Daniel, where are you going? Daniel says je vais au Canada pour passer mes vacances avec mes parents means I'm going to Canada for passing my vacations with my parents. Camille says amusez-vous et n'oubliez pas d'envoyer de vos nouvelles means amuse means enjoy and do not forget to send your new things means new experience that you are doing. ठीक है, so that is novel. Au revoir means goodbye या bye bye.
टू ensemble मीन्स एवरी वन टुगेदर, जो बचे हुए हैं कामिल से दूसरे वाले देश टुगेदर से और revoir, ठीक है। सो दिस इज़ वट वॉज इट वॉज द टेक्स्ट। इससे हमें पता चल रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है, डैनियल कहाँ जा रहा है, आदलीन कहाँ जा रहा है। अब मेरे को ये नहीं पता आदलीन लड़का है लड़की है, आई कांट गेस इट आउट। सो आदलीन कहाँ जा रहा है, फ्रांसुआ कहाँ जा रहा है, सो कामिल कहाँ जा रहा है, ये वी हैव सीन। नाउ अब आपको ये क्वेश्चंस जो है इनको लुक आउट करना है एक बार एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड। मैं आप लोगों को सिर्फ इनके मीनिंग बताऊंगी, आंसर्स आप लोगों को खुद पता करना है। कोमो एलोन मीन्स हाउ इज इंडिया। सो देखो यहाँ पर इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करा गया है इस इन दिस पैरा। सो यू हैव टू टेक द लाइन्स फ्रॉम हियर। पूको आदलीन वा टेल आला शॉम्पाइन। आदलीन एक लड़की का नाम है। वाई डज शी गो टू द campaign means the countryside. Où François va-t-il means where is François going? Avec qui Daniel va-t-il et où means with whom Daniel is going and where. ठीक है। Next है cocher les bonnes réponses means we have to choose या tick the correct answer. So first is le contraire d'avec means the opposite of with. Avec का मतलब होता है with. So means without. Avant means before. So the correct answer is so. Le contraire d'envoyer means the opposite of sending. ठीक है। gagner means to earn, recevoir means to receive. So the correct answer is recevoir. ठीक है। true or false है, read the sentence and say whether they are true or false. So easy है क्योंकि वोकैबलरी हमने ऑलरेडी कर ली है। अब हमारी जो टर्न आती है नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक्स करने की, विच वी आर गोना सी नाउ। सो ग्रामर में हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज ले प्रेपोजिशियो द लियर मीन्स द प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। ठीक है। प्लेस की हमारी जो प्रेपोजिशन होती है, देखो हम कहते हैं je vais au France, बट वाई डू वी से je vais au Japon? दिस इज़ बिकॉज जो हमारे कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज और रीजन्स होते हैं उनका भी फ्रेंच के अंदर जेंडर होता है। ठीक है। प्रेपोजिशंस हमारी उनके जेंडर के ऊपर ही डिपेंड करेंगी। ठीक है। जो हमारी कंट्री बेसिकली जो ई से एंड करती है उनको हम फेमिनिन जो है कंसिडर करते हैं। ठीक है। नाउ अब बारी आती है हमारी प्रेपोजिशन ड्यू और द की। ठीक है। नाउ जो हमारी द प्रेपोजिशन है ना, दिस इज गोना शो द बिलोंगिंग मीन्स यू आर फ्रॉम दैट कंट्री। ठीक है। लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम दैट कंट्री और यू आर कमिंग फ्रॉम दैट कंट्री, सो आप द वाली प्रपोजिशन का जो है यूज़ करोगे। सो जो हमारा मैस्कुलिन कंट्रीज़ है या कॉन्टिनेंट्स है उनके साथ हमारी जो द है इट इज़ गोना चेंज इन टू ड्यू। ठीक है। फेमिनिन के साथ इट इज़ गोना बी द। With plural country, it is gonna be they, and with countries or city starting with vowel, it is gonna be D apostrophe. ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जैसे कि मोजाम्बिक। Tu viens du Mozambique means you come from Mozambique. ठीक है। Je suis du Canada means I am from Canada. जहाँ पर from का यूज हो जाएगा वहाँ पर हमारा द की फॉर्म आएगी। ठीक है। जो हमारे आर्टिकल्स हैं दे आर नॉट यूज विद द कंट्रीज बिगिनिंग विद वॉवल एंड द कंट्रीज विच आर फेमिनिन। ठीक है। आर्टिकल्स हमारे यूज नहीं होंगे। ठीक है। चलो, दे आर नॉट गोना यूज आर्टिकल्स हमारे they are not going to be used with the countries with beginning with vowel and the feminine countries. ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इफ़ यू आर शोइंग योर पोजेशन, ठीक कि आप अभी उस टाइम पर करंटली रह रहे हो इन दैट कंट्री। इन का जब आप यूज़ करोगे तब हमारा यूज़ होगा ओ का। ओ के हमारे डिफरेंट जो है फॉर्म चेंज हो जाते। देखो ओ इज़ गोना बी फॉर द फेमिनिन कंट्रीज और द मैस्कुलिन और द कंट्रीज विच आर स्टार्टिंग विद वॉवल। ठीक है। फेमिनिन के लिए एंड वॉवल के लिए हमारा ओ का यूज होगा। वैसे ही इसका मीनिंग क्या होगा, इन होगा। ठीक है। फॉर कंट्रीज ओ हमारा होगा फॉर द मैस्कुलिन कंट्रीज, ए यू एक्स गोना बी फॉर प्लूरल कंट्रीज एंड आर फॉर ऑल द सिटीज। ठीक है। अब हमारी आती है कुछ एक्सेप्शन। हमारी 4 कंट्रीज हैं जो कि एंड ई से करती हैं बट दे आर मैस्कुलिन। फर्स्ट इज ज़ैर, सेकेंड इज जिम्बाब्वे, थर्ड इज मैक्सिक एंड फोर्थ इज मोजाम्बिक। ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को जो समझ में आ गई होगी। चलो, ये तो हमारा हो गया द ड्यू जो हमारे पोजेशन टू शो फ्रॉम द कंट्री। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी सावुआर एंड कोनेत्र वर्ब की। देखो सावुआर का मीनिंग भी
देखो, सावुआर का मीनिंग भी टू नो एंड कोनेत्र का मीनिंग भी टू नो। अब डिफरेंस क्या होगा, हम कौन सी वर्ब किस जगह पर यूज़ करेंगे। सावुआर हमारी यूज़ होगी व्हेन यू नो समथिंग, सम फैक्ट, सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको पता है कि कैसे कुछ चीज़ होती है, जैसे कि आपको अगर पता है कि स्विमिंग कैसे होती है, सो आप सावुआर वर्ब का यूज़ करोगे। ठीक है, बट कोनेत्र हमारी कब यूज़ होगी, जब आपको किसी कोई नॉन लिविंग किसी थिंग के बारे में पता है, या प्लेस के बारे में, या पर्सन के बारे में पता है। ठीक है, कि किसी पर्सन के या प्लेस के बारे में पता है। तो सावुआर वर्ब की कॉन्जुगेशन हमारी है ज से, त्यू से, इल से, नू सावो, वू सावे, इल साव, एल साव। ये कॉन्जुगेशन तो बेटा याद करनी पड़ेगी टिप्स पर। ठीक है, कोनेत्र वर्ब टू नो एनी प्लेस और पर्सन, ज कोने, त्यू कोने, इल कोने, नू कोने सो, वू कोने से, इल कोनोस। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई हो। एंड इल के केस में जो आई है उसके ऊपर ये वाला हमारा एक्सेंट भी लग जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, कोनेत्र वर्ब जो होगी इट इज़ यूज टू नो एनी प्लेस और पर्सन, तो इसके बाद कोनेत्र वर्ब इज ऑलवेज गोना बी फॉलोड बाय अ नाउन। ठीक है, कोनेत्र वर्ब के हर बाद एक नाउन ज़रूर होगा। ठीक है, चलो ये चीज़ भी हो गई, दो टॉपिक्स कवर्ड। अब लास्ट टॉपिक विच इज़ गोना बी फॉर दिस चैप्टर इज वाई ई आर वर्ब्स। नाउ वाई ई आर वर्ब सिंपल होती तो हमारी ई आर वर्ब्स ही हैं, बट इनके अंदर जो हमारा वाई है वो आई के अंदर जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड वो आई के अंदर सिर्फ नू एंड वू के अंदर नहीं होता। जैसे कि हम, मैं सिंपली इसको कॉन्जुकेट कर दिया मैंने, मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको कहीं पर। जैसे कि ने तो ये वर्ब का मैं एग्जांपल लेती हूँ, ने तो ये मीन्स टू क्लीन। ठीक है, ने तो ये वर्ब का मैंने एग्जांपल लिया, ई आर को मैं कट कर दूंगी, राइट, बच क्या गया, ये बच गया, एंड आई एम गोना पुट द एंडिंग ई ज के साथ। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट रूल क्या होगा, ये जो हमारा वाई है ना इसको हम हटा देंगे एंड इसकी जगह पर हमारा क्या लगेगा, आई लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, आई लगेगा। ये ऐसे ही होगा इन द त्यू ऑल्सो, इल ऑल्सो, एल ऑल्सो। नो वू के अंदर ऐसा नहीं होगा, इल और एल प्लूरल वाले के अंदर भी होगा। वाई इज गोना चेंज इट टू आई, बाकी का रूल सारा का सारा सेम रहेगा। एज यू कैन सी इन द कॉन्जुकेशन, ये न तो ये में आई में चेंज होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं, यहाँ यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट वर्ब का एग्जांपल हमें दे रखा ऑनवेये मीन्स टू सेंड। सो जॉनवेये वाई चेंज टू इनटू आई, पीछे की जो एंडिंग्स है वो तो सेम है, ई ई एस, ई ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी, ई एन टी। ये भी यहाँ पर भी आई में चेंज हो गया, यहाँ पर वाई में एज इट इज़ रहा वाई, यहाँ पर भी एज इट इज़, यहाँ पर वाई आई में चेंज हो गया, यहाँ पर भी। ठीक है, देर आर सम अदर वाई ई आर वर्ब्स विच आर ऑल्सो कॉन्जुकेटेड इन द सेम मैनर, यू कैन रीड देम एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज गोना बी ऑल फॉर दिस वीडियो, वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। ये जो वोकैबलरी आप एक बार इसको रीड कर लेना, आई होप वोकैबलरी में तो कोई डाउट होगा नहीं। एक्सरसाइज की बात हम करें, एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो हाँ मुझसे पूछ लेना पक्का। ठीक है, पक्का पूछोगे अगर कोई डाउट होगा, हाँ पक्का। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।